इंडिया। अब आप जानेंगे इस ऐप के ढेर सारे फीचर्स और कुछ बैक स्टेज कहानी जो शायद मुझे भी नहीं मालूम। Right from the horse's mouth, with a huge round of applause, please welcome our founder and CEO, Mr. Piyush. Hello, everybody. I welcome you all to our today's session. And can we start now? So, as Nancy has already mentioned, we have launched this app Khulke on October 2nd. We've been at it for quite a while, and we would like the message to obviously float all over the place, and that is the reason we're having the session today. What is Khulke? तो खुलके एक इंडिया सेंट्रिक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, कॉन्वर्सेशंस का प्लेटफॉर्म है. Our real belief is that unless there are conversations happening on social platforms, because generally what we see is a very 1+1 approach that goes on social networking platforms. So you have a birthday or something, you post and your friends come, एक मैसेज आता है और उसके बाद everything just kind of dies out. There is no, it will really change things. So video based conversations is one of the central propositions that we have made. Apart from that, there are various other ways to have conversations with each other. It's totally Indian owned. As she said, I am the founder. It's Indian funded and it's absolutely Indian created. So a lot of youngsters, most of them if you see are all based in India. They may not have worked, even with foreign companies. Very, very young people, have come together and put a lot of hard work in bringing in so much technology onto a single platform. At the same time, our approach is that we need to promote the Indian ecosystems. So this is what Khulke is expected to do. हमारा जो focus होगा, that will be mainly the Indian ecosystems. When I say that, I mean, say the education ecosystem all over India. Can we find a way to connect all the students, all the education institutions, all the academia onto a single platform? If that happens, somebody speaking in Hindi or Punjabi and you have colleges from Tamil Nadu and Kerala and West Bengal and other places like this. If that kind of confluence can happen, what can we get? Yeah. So that basically is our approach when we say India-centric, that we have to focus on the Indian ecosystem. Apart from that, one simple thing that we've done on Khulke, that users will be allowed to check out our content without the necessity for registration. They can just come, check out all the content that we have on our platform. And but if they would like to have an immersive experience, we will encourage that they register with us. Yeah. Now the question is, why Khulke? Why Khulke, or why a new, so why why Indian social media platforms as well? तो इंडियन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की नेसेसिटी तो एक है, बट वो एक इंडिया सेंट्रिसिटी के पर्सपेक्टिव से है. 140 करोड़ का हमारा देश है, 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ है, 7 से ज्यादा यहाँ पे संप्रदाय सकते हैं. जबरदस्त डेमोक्रेसी है, बहुत वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर है. ये इतना वाइब्रेंट है कि अगर कोई कहता है कि मुझे बोलने की आज़ादी नहीं, तो वो भी ब्रॉडकास्ट हो जाता है यहाँ पे. तो बहुत अच्छी डेमोक्रेटिक सेटअप है इन दैट सेंस. और सोशल नेटवर्किंग तो एक डेमोक्रेटिक प्रोडक्ट ही है. तो अगर इंडिया के पास अपना खुद का प्लेटफॉर्म नहीं होगा तो किसके पास होगा? दैट आई थिंक इज ए वेरी डीप थॉट दैट वी हैव. अगर किसी दूसरी कंट्री जो ऑटोक्रेटिक है उनके पास हो सकता है अपना खुद का प्लेटफॉर्म, तो भारत के पास क्यों नहीं होना चाहिए? आई ऑल्सो बिलीव इंडिया कैन बी द ट्रस्टी टू so many different countries running a very responsible social networking platform. एक जो मैंने आपसे पहले कहा, एक इम्पॉर्टेंट नेसेसिटी ये भी है कि टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट करीबन आधा वर्ल्ड जो है, 4 बिलियन पीपल आर ऑन सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स. सही? ये 4 बिलियन पीपल के सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे होने से सोसाइटी को क्या गेन मिल रहा है, क्या बेनिफिट मिल रहा है? मैं कुछ एक नुकसान डेफिनेटली जानता हूं, और
मैं यहाँ पर मीडिया के फ्रेंड्स के साथ बैठा हूँ, आप लोगों ने कई बार ये बातें उठाई हैं। अभी कुछ दिन पहले जब भारत में नूह की वायलेंस हुई, सो सम टेलीविजन चैनल कॉल्ड मी फॉर अ डिबेट कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या, बिकॉज लॉट ऑफ इंस्टिगेटिंग मैसेजेस वर गेटिंग सर्कुलेटेड। आई टोटली एग्री विद यू कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट हमने एटमॉस्फेयर क्या बनाया हुआ है सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पे? अगर हम ब्लैक लाइव्स मैटर या हम अरब स्प्रिंग या हम फ्रेंच सिविल राइट्स, ये सारे केसेस देखें और उसमें सोशल मीडिया का हम रोल देखें, जब इसी के लेवल पे, इसी के स्केल पे हम बात करना चाहें कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या है, तो जो फॉर्म पे जाएंगे तो आपको वो भी दिख जाएगा कि क्या बातचीत हुई, और साइड में जो बच्चों के कमेंट्स हैं वो देख के आपको बड़ा अच्छा लगेगा। यू विल फाइंड कि मतलब इस तरह का एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है भारत के अंदर। और मैं आपसे ये बात डेफिनेटली शेयर करना चाहता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म क्यों बनाया गया है, क्योंकि हमारे को भारतीयों में विश्वास है। मैं ऐसा कतई नहीं मानता कि भारत को केवल कंट्रोवर्सीज में, भारत को केवल नेगेटिविटीज में, भारत को केवल स्लीजी एडल्ट कंटेंट में, इसी में इंटरेस्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी चॉइसेस तो जो हमारे को परोसा जा रहा है वहां तक लिमिटेड है, अब वही चल रहा है तो पब्लिक वही देख रही है। इसे हमारे को चेंज करना है, और इसके लिए ट्रेंड मास मीडिया प्रोफेशनल्स को बड़ा रोल लेना आवश्यक है। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे ट्रेंड मास मीडिया प्रोफेशनल्स, आप ही की फ्रेटर्निटी से कई सारे सीनियर जर्नलिस्ट्स, वो आज इस तरह की इंटरेस्टिंग चर्चाएं लगा रहे हैं। जैसे अगर राकेश शर्मा जी का डिस्कशन है तो पल्लव बागला जी लगा रहे हैं, अगर मनोज रघुवंशी जी हैं तो उनका मन किया कि मुझे जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पे कुछ करना है, तो वो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पे अपनी चर्चाएं लगाते हैं, जजेस लेके आते हैं, रिटायर्ड जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या सीनियर लॉयर्स, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लॉयर्स, इस तरह के बहुत बढ़िया उन्होंने एटमॉस्फेयर बना के रखा हुआ है और वो अपनी बातचीत लगा रहे हैं। ही वाज अ गुड कोडर, उसने उनसे सीखा है, और थोड़ा सा यहाँ वहाँ वीडियोस चलते हैं, उनसे कुछ सीखा है। उससे सीख के उसने अपना जो मेन फोकस एरिया बनाया कि वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग इस पे। तो मैं, हालांकि उसको जॉब वो नहीं मिला था पहले, ही वाज वर्किंग ऑन सम वेरी स्पेसिफिक, वो ट्रिमिंग, वीडियो ट्रिमिंग कैसे करते हैं, बट मुझे दिखाई दिया कि ये बच्चे को वीडियो बड़ा अच्छे से समझ में आ रहा है कि वीडियो टेक्नोलॉजी है क्या बेस पे। तो मैंने धीरे से हिंट डाली कि आई एम लुकिंग एट समबडी हु कैन हेल्प अस बिल्ड इंडियाज ओन लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। 3 months later, this boy contacts me. He says, मैंने proof of concept बना दिया सर। मैंने कहा अच्छा। बोला 3 दिन का समय और दे सकते हैं आप? मैंने कहा मैं छुट्टी जा रहा हूँ। बोला मैंने इसीलिए कॉल किया आपको, 3 दिन का समय दे दीजिए, आधा घंटा लूंगा छुट्टी में। मैंने कहा ले लो। उसने दिखाया, was very happy, जो उसने बेसिक प्रूफ बनाया था। तो मैंने कहा तुम्हें क्या करना है? बोले मुझे आपको ज्वाइन करना है। क्यों? बोले मुझे विजन अच्छा लग रहा है, तो मैं ऐसे प्रोजेक्ट में अगर आप मुझे लेंगे क्या? तो मैंने वो सोचा था राउंड टेबल के लिए, मैंने कहा वो बाद में करना, तुम पहले ये प्रोडक्ट बनाओ हमारे लिए। और धीरे धीरे टीम एक्सपैंड हुई और जबरदस्त काम हुआ। हमारा लॉन्च, हमारी 100 से ज़्यादा लोगों की टीम है ऑल ओवर इंडिया, जिसमें से बॉम्बे, दिल्ली और बैंगलोर मेजर कॉन्सेंट्रेशन है, बट बाकी लोग कोई बीकानेर में, कोई असम में, इस तरीके से लोग फैले हुए हैं। तो जब लॉन्च के लिए इंटरनल सेलिब्रेशन हम कर रहे थे, सारा का सारा यहाँ पे 65-100 लोग जो हैं इस प्लेटफॉर्म पे आके घंटा 1.5 घंटा जो है एक दूसरे के साथ बातें करते रहे। न जाने हमने ऐसे कितने टेस्ट कर लिए, और ये जनवरी से हम जो है इसको टेस्ट कर रहे हैं। आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट के लिए आप बटन पर क्लिक कीजिए, और जो हमारा प्राइवेट मैसेजिंग का जो ऐप है, ऐप, उसमें आपको डायरेक्टली लिंक आ जाएगी। कुछ नहीं करना, आपने रिकॉर्डिंग की, रिकॉर्डिंग के बटन पर क्लिक कर दीजिए, मीटिंग खत्म होगी, आपको वापस से अपने अकाउंट में कहीं सेटिंग्स में जाके यहाँ वहाँ जो हम पूरी मेहनत करते हैं ढूंढने के लिए, सिंपल आइडियाज हैं। आने वाले समय में ये इतने सारे अलग अलग यूज केसेस के लिए कस्टमाइज कर दिया जाएगा कि अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है तो उसको किस तरीके से अलग अलग एलिमेंट्स यूज करने हैं, लोगो डालना है। आप भी आज भी इसमें आप लोगो डाल सकते हैं, अपना खुद का इंट्रो वीडियो डाल सकते हैं, आउट्रो वीडियो डाल सकते हैं। आपकी एक सिंपल ऑनलाइन मीटिंग बहुत बढ़िया तरीके से पैकेज की जा सकती है। अब धीरे धीरे इसमें यू कैन हैव योर ओन फ्रेम्स। आने वाले समय में मेरे ख्याल से आप 2 महीने का समय देंगे, यू कैन हैव योर ओन फ्रेम्स कि मेरा फ्रेम ऐसे दिखना चाहिए,
3 लोगों का फ्रेम ऐसे दिखे, 5 लोगों का फ्रेम ऐसे दिखे, वी डिसाइड। लोगों को ऑन बोर्ड करना, ऑन स्टेज करना है, ऑफ स्टेज करना है, ऑल दीज थिंग्स बहुत बढ़िया। सो ऐसे बहुत अच्छा ये और मीटअप का हमने ऐप बनाया है। कुछ भी नहीं है, 10 मीटिंग आप ऑनलाइन जो करते होंगे, एक ऑनलाइन मीटिंग आप खुल के मीटअप पे ट्राई करके देखिए, ठीक। सो ये हमारे मेजर फीचर्स हैं। कंटेंट जो है वो हमारा लाइक वी सेड मेजरली इंडिया सेंट्रिक हमारा कंटेंट होगा, और कई सारे हमने आपको बता दिया कि मीडिया प्रोफेशनल्स हमारे साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं। उसका रीजन है वो ट्रेन है, उनका एक सेंस ऑफ हायर पर्पस है, तो जिस तरह की वो बातचीत भी कर रहे हैं वो उसको दर्शा रहा है, एंड दैट इज व्हाट वी थिंक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म शुड एसेंशियली ब्रिंग आउट। और हम ऐसा समझते हैं कि आने वाले समय में बहुत लोग हमारे को और ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उन्हें वो किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इन्हें पोस्ट करते रहने से ज़्यादा अच्छा है कि फिर आप पूरी एक चर्चा ही लगाइए, तो आपका समय जो है और ज़्यादा अच्छे से बीतता है, आपको भी एक सेटिस्फैक्शन फील होता है अंदर। फिर जो है यूजर जनरेटेड, जो प्रोफेशनली जनरेटेड जो कंटेंट होगा, इस तरह का कंटेंट हमारे लिए मोनेटाइज करने का मतलब बनता है। ये हमारी क्लियर कट फिलॉसफी रहेगी कि जो कंटेंट हमें नहीं लगता है हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं होना चाहिए, अगर ये कंटेंट हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं चाहिए, हम इसको मोनेटाइज नहीं कर रहे। जो कंटेंट हमारे प्लेटफॉर्म पे चाहिए, वी आर रेडी टू मोनेटाइज दैट। ओके, तो वो बहुत बड़ा एक ट्रेंड बनेगा कि किस तरह का कंटेंट हमारे प्लेटफॉर्म पे आएगा, बिकॉज हम पैसे ही नहीं देंगे तो बहुत सारे लोग आना भी पसंद ना करें शायद उस तरह का कंटेंट लेके। फिर जो है यूजर जनरेटेड कंटेंट जो है वो जनरली हमारे को दूसरे एरियाज में दिखाई देगा, जैसे टाउन हॉल है, शॉर्ट वीडियोस हैं, वहाँ पे हमारे को यूजर जनरेटेड कंटेंट ज़्यादा दिखेगा। 50% हम सोच रहे हैं कि जो लॉन्ग फॉर्म वीडियोस हैं वहाँ पे यूजर जनरेटेड कंटेंट भी काफ़ी होगा, जैसे चर्चाएं हो रही हैं स्टूडेंट्स के बीच में, कॉलेजेस के बीच में, एमएसएमईज के बीच में, उस तरह की जो डिस्कशंस हैं, वी बिलीव दैट विल कवर द अदर 50%। हमारे जो की कंटेंट एरियाज होंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं ऑलरेडी, मैंने इंडिया का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत बढ़िया से डिस्कस हुआ। तो ऐसे ही न जाने कितने सारे डिस्कशंस, आदित्य L1 और बहुत सारा कुछ, चंद्रयान, एवरीथिंग, यस, डे फॉर यस्टरडे, राकेश शर्मा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारा बहुत अच्छे से सेगमेंट जा रहा है, और हम समझ रहे हैं कि अब आफ्टर दिस लॉन्च कम से कम एक 8 से 10 घंटे का डेली कंटेंट जो है हम केवल इसी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आएगा, क्योंकि बहुत एरिया है साइंस टेक्नोलॉजी में। बिजनेस एंड इकोनॉमी अगेन बहुत बड़ा हमारा एरिया होगा, क्योंकि एमएसएमई अगर इंडिया को वर्ल्ड पावर बनना है तो प्रोडक्शन हाउस यहाँ पे होगा। इतने मैटर्स निकलेंगे उसमें जब ये इंजन जो है स्पीड पकड़ेगा। दैट इज व्हाट वी नीड टू डिस्कस। इसलिए बिजनेस एंड इकोनॉमी हमारे को लगता है बहुत बड़ा सेक्शन बनेगा। तो पर्सनल फाइनेंस वगैरह तो हो गई, लेकिन जो हमारे को दिखता है बड़ा फोकस हमारा होना चाहिए एमएसएमई। लॉ एंड जुडिशरी ऑलरेडी वी आर एस्टैब्लिशिंग, बट वी आर थिंकिंग अगेन कि यहाँ पर भी हमारे को कम से कम जो है 8 से 10 घंटे का कंटेंट होना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पर डिस्कस करने के लिए। गवर्नेंस एंड लेजिस्लेचर ये इग्नोर हो जाता है बड़ा रेयरली, जब तक कोई कंट्रोवर्सी ना हो उसमें तब तक कुछ होता नहीं है। लेकिन आम आदमी के लिए जो लॉज बन रहे हैं, अगर उसके बारे में उसे एजुकेट ही नहीं किया तो क्या फायदा। सिमिलरली जब हम लॉज के बारे में बात करें उसे इंटरेस्टिंग बनाएं। कभी कभी हम लॉज के बारे में बात करते हैं तो बड़े जनरिक फॉर्म में हम बात करते हैं कि समझिए कि रिलीजियस हर्ट का लॉ है, वो पता नहीं कैसे हम उसको चर्चा करते हैं। कानून भारतीय लेके आए हैं, इसका एक इतिहास है, 1927 में ये सेंट्रल लेजिस्लेचर में डिस्कस हुआ, कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से लेजिस्लेचर पे चर्चा हो। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वही तो आप लोग चाहते हैं। अमुक नेता ने अमुक नेता के बारे में क्या कहा, इस पे इतना समय निकल जाता है। अगर हम ये डिस्कस करें कि क्या पॉलिसीज अलग अलग गवर्नमेंट्स लेके आ रही हैं और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, वी बिलीव देयर इज अ लॉट मोर जूस इन दैट एंड लॉट मोर यूटिलिटी इन दैट। फिर इसी तरीके से करंट अफेयर्स एंड पॉलिटिक्स। तो आप अगर डेमोक्रेटिक देश में रह रहे हैं और आपको एक दिन जाके वोट भी करना है तो राजनीति से आप बच तो नहीं सकते, लेकिन जहां तक हो सके उसको करंट अफेयर्स के साथ मिला के हम सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं। स्पोर्ट्स एंड हेल्थ अगेन बिग, एंटरटेनमेंट, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि केवल एक ज्ञान का प्लेटफॉर्म है। मस्ती भी है, लेकिन एक अच्छी टाइप की मस्ती भी होती है, कॉमेडी भी हो, लेकिन कॉमेडी हेल्दी कॉमेडी भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि जोक्स केवल नॉनवेज में ही हंसी आती है, हाँ, तो उस तरह के जोक्स भी हों हमारे यहाँ पे। और लास्टली जो है एजुकेशन, वो बहुत बड़ा एरिया रहेगा ऑनलाइन एजुकेशन के एरिया में, जो कि स्कूल कॉलेजेस के करिकुलम को रिप्लेस करने के लिए नहीं, कुछ नया राइट एक्सपोजर उनको देने के लिए। रिवॉर्ड सिस्टम हमने अपने यहाँ प्लेटफॉर्म पे थोड़ा अलग रखा है कि पॉजिटिव पार्टिसिपेशन को हम एनकरेज करना चाहते हैं। तो क्वालिटी ऑफ कंटेंट जो है हमारे लिए कोई प्रायोरिटी है। जो एल्गोरिदम्स होते हैं
कंटेंट प्रेडिक्शन के लिए वी आर एब्सोल्युटली अवॉइडिंग दोस. हम उसमें अभी नहीं जाना चाहते. Makes no. Media, there are some sort of broadcasting guidelines or a self-censorship, whatever way. Here, how would you ensure? Because end of the day, what you are proposing is across verticals, lot of content, and lot of them will be sensitive. So how do you ensure a sort of a self-censorship or those guidelines? Because otherwise, if the numbers that you are saying in terms of user-generated content to come up can go haywire, Right. in terms of. So how would you ensure against that? Great questions. So it is true that I have not spoken much about revenue. One very simple reason is today we're here on day 2, right? It's launch that we're trying to address here. Revenue is a complicated area. A lot has to be done. We're not looking at a very established methods of generating revenue only. It's needless to say that thought has gone into it. I would not have gone into this business if I did not think of revenue. I'm not expecting more than 40% coming from advertising. So the other 60% is where all the creativity will lie. You have to realize we are talking about ecosystem generation. If you start looking at it very seriously, you will find that maybe that is where we are looking at generating the revenue of tomorrow. Lot of opportunities will get created, right? But how long? Because end of the day, even the duration. So we're not expecting much revenue in the first year. We're not expecting, but we are expecting revenue in the first year, but not much revenue in the first year. We believe it is at the end of the 2 years that the clear revenue lines will begin to emerge because it needs a threshold. So those thresholds will be coming up. And any likely target in the 2-year frame that you would? In terms of monies? Yes. Too early, sir. Too early. Too early. First targets that we have are essentially about bringing the ecosystems onto the platform. Yeah. What was your second question, sir? The second question was in terms of some guidelines, Guidelines. and also like you mentioned that documents example. Right. So not only the guidelines, anyone uploading any documents can lead to copyright violation and lot of things. So Indeed. how would you put a check against all of those? So some are laws that we have to follow, which we'll be following. But I have decided that our approach has to be step 1, 2, and 3. You need different lines of defense against irresponsible or incorrect content getting uploaded. Step 1 is, because I come from real estate, so I'm in the business of these 4 walls. These 4 walls make your home. Same 4 walls could be your office. Same 4 walls could be a temple. Same 4 walls could also be a discotheque. And it is same you that stays at home, behaves in one way. That goes to the temple, behaves in a different way. That goes to office, behaves in a professional way. That goes to the discotheque and is ready to let his hair down and enjoy. You don't take your book and study in a discotheque, right?